My lovely students, welcome to Mythological. In this session, we'll be discussing third decision-making set from ZAT 2024 examination. And if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel if you're liking the content and press the bell icon. So, read the set carefully and then answer the 3 questions. Okay. Raman had been working tirelessly as a project manager in the IT department of Flying Groceries. So Raman is a project manager in IT department of Flying Groceries, a renowned app-based supply chain company, for the past 3 years. Having graduated from a top-tier engineering college, he dived straight into the corporate world, managing projects with great zeal that inspired his seniors. At the end of his first year with Flying Groceries, impressed with his hard work, Raman's boss Suraj, the founder CEO, so Raman is the person, the engineer, and Suraj, the founder CEO of Flying Groceries, fast-tracked his promotion and made him delivery manager responsible for multiple projects of a vertical. So Suraj made Raman delivery manager at the end of the first year itself. And Suraj also promised Raman the position of chief operation officer in the 5th year of his tenure. In search of a greater career trajectory, Raman pursued entrance exams for business schools. His efforts bore fruits as he secured a place in the country's best business school. Now guess the name. Country's best business school, known for a strong alumni base, stellar placement records, and demanding academic requirements. Raman was delighted. He had 3 months to join the business school. Flying Groceries demanded that any employee who wished to leave the organization should give at least a month's notice. So at least a month's notice has to be given. Raman decided to continue working and enriching his work experience, which will be beneficial when applying to companies after graduating from the business school. Therefore, he decided not to share the news of the offer with anyone else for the time being. So this is the passage. This is the case. First question. So first question is, Flying Groceries was planning to implement a much needed update to enhance the functionality and user experience of their app. There is a needed update that they are planning to implement, and according to Suraj, the update was expected to take at least 6 months. The timeline is at least 6 months to complete. Suraj wanted Raman to lead this project because his leadership was critical for the project's success. However, Raman knew that he would be there only for 3 months and project is going to take at least 6 months to complete. So Raman was not sure whether he should accept the project. Okay. Question is saying which of the following information, if true, will best assist Raman in accepting the role of leading the project. So which of the following information will best assist Raman in accepting the role of leading the project? First option, during his time with Flying Groceries, Raman finished some projects ahead of the schedule. Second one, Raman could requisition more human resources to his team for the next 3 months. Requisition यानी कि डिमांड कर सकता है, ठीक है, डिमांड फुलफिल होगा नहीं होगा, we are not sure. Third one, Suraj might advise against the update if he got to know that Raman was leaving soon. Fourth one, the last 2 projects Raman had led were successfully completed by his subordinates during his exams. And fifth one, Raman had previously taken many projects home and the business school would have no classes during the weekends. First of all, we have to eliminate wrong options. ठीक है, instead of selecting one option directly, we have to eliminate wrong options. और फिर जो बचे हुए options होंगे उनमें से we should be identifying which one will be best. So first one is, during his time with Flying Groceries, Raman finished some projects ahead of the schedule. So this important word here is some. Some is the important word. Some projects. अब ये जो project है हमारा, this is critical. ठीक है, this is about enhancing the functionality and user experience of their app. Now we are not sure whether this is that some project. Is this project some project? We are not sure. No idea. ठीक है, no idea. अगर some की बजाय similar mentioned होता, similar project, तब फिर definitely first statement हमारा relevant होता. But some project की बात कर रहा है, maybe those projects were easier than this one. ठीक है, so we are not sure. तो first वाला cannot be the best one for sure. Second, Raman could requisition more HR, more human resource to his team for the next 3 months. So Raman could requisition, could demand, but demand fulfill होगा नहीं होगा, that we do not know. हो सकता है डिमांड करे बट फुलफिल ना हो डिमांड, तो दैट इज पॉसिबल. ठीक है, सो एक्सेप्टेंस इज द इशू. एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर. ठीक है. सेकेंड थिंग कि इवन इफ ही गेट्स द ह्यूमन रिसोर्स दैट ही रिक्वायर्स, बट द पॉइंट इज कि इज ह्यूमन रिसोर्स द इशू, इज लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द इशू behind the timeline कि at least 6 months लगेंगे. Yes, there might be some other factors. ठीक है, so still even if he is getting the human resource, still there might be other factors to delay the project. ठीक है, प्रोजेक्ट माइट नॉट स्टिल बी कंप्लीटेड इन 3 months. हो सकता है फिर भी 3 months में कंप्लीट ना हो पाए, फिर भी इसको 5 months का 6 months का टाइम लग ही जाए.
So HR is the only issue. Are we know that? Are we sure about that? No, we are not sure about that. क्वेश्चन में तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि HR ह्यूमन रिसोर्स इज द इशू, तो वैसा तो कुछ मेंशन नहीं है. तो सेकंड वाला भी हम फॉर श्योर नहीं कह सकते, बट इसको होल्ड पे रख सकते हैं. अगर बचे हुए ऑप्शंस में से बेस्ट होगा तो फिर मार्क कर देंगे. थर्ड वन, सूरज माइट एडवाइज अगेंस्ट द अपडेट इफ ही गॉट टू नो दैट रमन वाज लीविंग सून. सूरज माइट एडवाइज अगेंस्ट द अपडेट इफ ही गॉट टू नो दैट रमन वाज लीविंग सून. तो अल्टीमेटली क्या रोल एक्सेप्ट तो कर लिया, बट क्या कंप्लीट कर पाएगा इन दैट केस? ठीक है, बिकॉज इफ ही गॉट टू नो, इफ सूरज गॉट टू नो दैट रमन वाज लिविंग सून, सूरज माइट एडवाइज अगेंस्ट द अपडेट. तो फिर काम तो स्टार्ट किया, आधा अधूरा छोड़ के खत्म कर दिया, मतलब कि आधा अधूरा छोड़ के भाग गए, वही कहानी हुई ना. तो यहां पे अल्टीमेटली एंड तो नहीं कर पाए ना, इज़न्ट इट सो? तो जो काम खत्म ही नहीं करना है उसको स्टार्ट भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नॉट स्टार्टिंग इज मच बेटर देन स्टार्टिंग एंड लीविंग हाफ वे. तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं हुआ इस बात का. ठीक है, क्योंकि सूरज एडवाइस कर देगा अगेंस्ट द अपडेट, तो फिर करते रहो जब तक करना है, फिर बाद में छोड़ के भाग जाओ. तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, नॉट राइट. ठीक है. फोर्थ वन, द लास्ट टू प्रोजेक्ट्स रमन लेड वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय हिज सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग दिस एग्जाम्स. नाउ अगेन, लास्ट टू प्रोजेक्ट्स कैसे थे? वी हैव नो आइडिया. सो इज दिस प्रोजेक्ट सिमिलर टू लास्ट टू प्रोजेक्ट्स? वी आर नॉट श्योर. Not sure. But statement is saying that last two projects Raman led were successfully completed by his subordinates. So though this statement is not really saying about कि the last two projects similar थे नहीं थे, but this is still saying that his subordinates are capable enough to finish the projects if he is not present at the moment. ठीक है, so they can successfully complete the projects. So this statement is basically saying about competence of his subordinates. Isn't it so? Competence of his subordinates. His subordinates are competent enough कि if that hour comes, they will be successfully helping him. ठीक है, in completion of the project. तो क्या बात समझ में आता है? They can assume the role of the leader. So that is one case. So इसको भी होल्ड पे रखते हैं. Fifth one, Raman had previously taken many projects home and the business school would have no classes during the weekends. Now there is an issue with this statement that previously he had taken many projects home. That is fine. But previously तो वो additionally लेके जाता होगा ना, ultimately ऑफिस में वर्क करता होगा और कुछ प्रोजेक्ट्स को थोड़ा बहुत घर पे भी निपटा देता होगा, तो एडिशनल वर्क कर लेता था घर पे. बट क्या वो ऐसा करता था कि मान लो कि सिर्फ वीकेंड पे ही काम कर रहा है, बाकी वीकडे पे छुट्टी मना रहा है? ऐसा तो कोई केस नहीं था. ठीक है, तो दिस टाइम दिस विल बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ही विल बी हैविंग क्लासेस ऑन द वीकडेज. तो वीकडेज पे तो वर्क कर नहीं पाएगा, बिकॉज एज पर द ऑप्शन ऑल्सो वीकेंड्स पे उसको टाइम अवेलेबल होगा, वीकडेज पे तो कंस्ट्रेंट होगा उसके पास. ठीक है, वीकडेज पे तो एकेडमिक वर्क होगा. एडिशनली क्या ये वर्क हमारा, क्या ये प्रोजेक्ट सफिशिएंट है कि वीकडेज पे काम करके निपट जाएगा, वीकेंड्स पे काम करके निपट जाएगा? डू वी नो अबाउट दैट? वी आर नॉट श्योर. ठीक है, तो एकेडमिक कंस्ट्रेंट है, एकेडमिक वर्क रहेगा उसको, एडिशनली वर्क प्रेशर रहेगा. ठीक है, एंड माइट नीड वर्क ऑन वीकडेज. इन सब चीजों का तो आइडिया है नहीं. ओके, फिर ऐसे हाफ टाइम काम करने के लिए क्या कंपनी अलाउ करेगी? क्या कंपनी अलाउ करेगी? क्या वर्क एथिक अलाउ करेगा? तो देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स विद दिस ऑप्शन. और जहां पे बहुत सारे डाउट्स हो, वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि बेस्ट असिस्ट कैसे करेगा रमन को इन एक्सेप्टिंग द रोल? तो ये मामला तो चल नहीं पाएगा पैरेलल में. ठीक है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, पैरेलल में कैसे चला लोगे कि बस वीकेंड पे काम करते रहेंगे हो जाएगा? अरे वी आर नॉट श्योर. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. अब 2 और 4 में से हमें एक चूज करना है. 2 कह रहा है रमन कुड रिक्विजिशन मोर HR मोर ह्यूमन रिसोर्स टू हिज टीम फॉर द नेक्स्ट 3 months, और 4 कह रहा है लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स रमन लेड वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय हिज सबऑर्डिनेट्स. अब 2 में वो डिमांड कर रहा है, डिमांड फुलफिल होगा नहीं होगा नहीं पता, ह्यूमन रिसोर्स अकेला इशू है नहीं है नहीं पता, तो स्टिल दिस प्रोजेक्ट माइट टेक 6 months इवन इफ द ह्यूमन रिसोर्स इज गिवन टू हिम. ठीक है, तो सेकंड वाला इज नॉट अप्रोप्रिएट, बट फोर्थ वाला दो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस दिस इज द बेस्ट वन. ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन हो सकता था, बट ऑप्शन कोई हमें जो गिवन है उन्हीं में से चूज करना है. तो फोर्थ इज बेटर देन सेकंड वन, तो फोर्थ शुड बी द आंसर, बिकॉज फोर्थ एज पर द फोर्थ स्टेटमेंट. ठीक है, वी आर नॉट श्योर कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज सिमिलर टू दोज 2 प्रोजेक्ट्स, बट वी आर श्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट्स आर कंपिटेंट, so they can be trusted and this will assist
best Raman in accepting the role of the leading the project. Option 4 should be the answer, and this is the official answer. Okay, clear है? Next question, because ultimately matter यही करता है हम क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि XLRI क्या सोचता है. What was the official answer? So option 4 is the official answer. Okay, or among the given options, that is the best option as well. Next question. After a couple of months, Raman resigned. Suraj was shocked by Raman's resignation and asked him to reconsider his decision. When Raman expressed his inability to continue, Suraj felt betrayed. This led to a series of heated arguments between them and they swore to never work together again. तो हो गया झगड़ा, लफड़ा हो गया. तो आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स रमन ने रिजाइन किया. सूरज शॉक में आया. सूरज ने कहा रमन से कि कंसिडर करो अपना डिसीजन. रमन ने कहा नहीं करना, हमको आगे बढ़ना है, अपने कैरियर का सोचना है. सूरज को लगा धोखा हो गया एंड अल्टीमेटली दे हैड सम सीरीज ऑफ हीटेड आर्गुमेंट्स एंड दे swore टू नेवर वर्क टुगेदर अगेन. तो उनके बीच का रिलेशनशिप खराब हो गया. रमन जॉइंड द बिजनेस स्कूल. हाउएवर ही सून रियलाइज्ड दैट अकेले काम चलेगा नहीं, सूरज की हेल्प की जरूरत पड़ेगी. That summer internship placements were approaching. Consequently, he would require verification of his responsibilities from Flying Groceries. तो उसको क्या चाहिए? He requires verification of his responsibilities from Flying Groceries. Now, question की language को हमेशा ध्यान से पढ़ना है. Question कह रहा है which of the following actions is the most appropriate for Raman to obtain his verification. तो we need to choose most appropriate action for Raman to obtain the verification. उसको क्या चाहिए? He requires verification of responsibilities from Flying Groceries. Statement 1, Raman should write a sincere and professional apology letter expressing regret for the argument Raman had with Suraj. Now, हर एक statement के बारे में सोचो which should be appropriate. Second one, Raman should write an email to Suraj emphasizing Raman's roles and responsibilities and request him to approve them. Now, between 1 and 2, which one do you think is better option? Between 1 and 2, क्योंकि 1 में क्या कर रहा है? 1 में Raman is writing a sincere and professional apology letter expressing regret for the arguments Raman had with Suraj. But हमारा concern क्या है? Our concern is to identify the most appropriate action for Raman to obtain the verification. But क्या first statement में कहीं पे भी verification की बात हो रही है? नहीं हो रही है ना. ठीक है. So that is why first statement is definitely not correct. Because कहीं पे verification तो आ ही नहीं रहा. भाई चलो सॉरी वॉरी बोल भी दिया, बट वेरिफिकेशन का क्या पर्पस? तो अल्टीमेटली वेरिफिकेशन है. तो फर्स्ट तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है. सेकंड वन, रमन शुड राइट एन ईमेल टू सूरज एम्फसाइजिंग रमन्स रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रिक्वेस्ट हिम टू अप्रूव देम. चलो बेटर है, बेटर देन 1. बट क्या सफिशिएंट है? क्या सफिशिएंट है? क्या अप्रूवल मिल जाएगा, वेरिफिकेशन मिल जाएगा? नॉट श्योर. नॉट श्योर अबाउट वेरिफिकेशन. अच्छा, ऑल्सो फर्स्ट वन वॉज अनप्रोफेशनल अप्रोच एज सच. इनफॉर्मल अप्रोच था. ठीक है, इनफॉर्मल था. मे बी अपॉलॉजी के लिए काम कर जाता, बट वेरिफिकेशन की तो कोई बात ही नहीं. सेकंड वाला इज मोर फॉर्मल. ठीक है, कि बिकॉज रमन इज राइटिंग अ ईमेल टू सूरज एम्फसाइजिंग हिज रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रिक्वेस्टिंग फॉर अप्रूवल. तो बेटर देन द फर्स्ट फॉर श्योर. थर्ड वन, रमन शुड कॉन्टैक्ट द एचआर रिप्रेजेंटेटिव टू फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन ऑफ रमन्स रिस्पांसिबिलिटी. नाउ दिस इज द बेस्ट अमंग द गिवन अब तक के, बिकॉज ही इज कॉन्टैक्टिंग द राइट पर्सन, एचआर रिप्रेजेंटेटिव. बिकॉज अल्टीमेटली अगर उसको वेरिफिकेशन करना है अपनी रिस्पांसिबिलिटी, एचआर रिप्रेजेंटेटिव इज द बेस्ट पर्सन अवेलेबल. और यहां पे सूरज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसको. ठीक है, तो बेटर देन द सेकंड, बिकॉज सूरज से तो लफड़ा ऑलरेडी हो चुका है. सूरज को अवॉइड करके अगर अपना काम बन जाए बेस्ट है. तो बेटर देन द सेकंड फॉर श्योर. तो सेकंड भी आंसर अपना नहीं होगा. फोर्थ वन, रमन शुड रीच आउट टू अ म्यूचुअल एक्वेंटेंस विद इन द कंपनी एंड आस्क हर टू इंटरवीन. नाउ म्यूचुअल एक्वेंटेंस ना तो इसका रोल है, ठीक है, ना इसकी पावर है, ना अथॉरिटी है. ही इज जस्ट अ म्यूचुअल एक्वेंटेंस. तो क्या इसकी जरूरत है? जरूरत भी नहीं है. जिसका ना रोल है, ना पावर है, ना अथॉरिटी है, ही इज नॉट नीडेड. ऑलरेडी डायरेक्टली एचआर रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट कर सकता है, उससे झगड़ा थोड़ी हुआ है. तो म्यूचुअल एक्वेंटेंस की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. तो डेफिनेटली फोर्थ इज निगेटेड, बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. फिफ्थ वन, रमन शुड रीएस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद सूरज थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड परसुएड हिम देयर. नाउ ये तो सबसे गलत हो गया. जो काम करना है, रीएस्टैब्लिश भी करना है कम्युनिकेशन, तो फॉर्मली करे. ठीक है, एक लेटर लिख के, जैसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वो करे. बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों करेगा? थ्रू फेसबुक. एब्सोल्युटली रॉन्ग. कि पूरा झगड़ा अपना पब्लिक कर दिया, ई लफड़ा कर दिया उसको. ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है. थर्ड वन विल बी द बेस्ट आंसर अमंग द गिवन. और डायरेक्ट आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि एचआर रिप्रेजेंटेटिव से सीधे सीधे वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रमन रिसीव्ड अ वेरिफिकेशन लेटर फ्रॉम फ्लाइंग ग्रोसरीज. अब कहां से मिला पता नहीं, एचआर रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया होगा. आउटलाइनिंग हिज बेसिक जॉब रिस्पांसिबिलिटीज ड्यूरिंग हिज टेन्योर. हाउएवर, रमन रिक्वायर्ड अ डॉक्यूमेंट टू सब्सटैंशिएट the additional responsibilities he undertook at Flying Groceries. तो वेरिफिकेशन लेटर तो मिल गया, बट ही ऑल्सो रिक्वायर्ड अ डॉक्यूमेंट
to substantiate additional responsibilities he undertook by going beyond his call of duty. Sadly, he did not have any documentation of such additional responsibilities. So question is, which of the following options will best help substantiate the additional responsibilities Raman undertook? Best help substantiate. So जितना accurate होता बेटर है, accurate हो, verifiable हो, ठीक है, और करेक्ट सोर्स हो. सब्सटेंशिएट तभी कर पाएगा ना, करेक्ट सोर्स हो, राइट सोर्स हो. फर्स्ट स्टेटमेंट, रमन शुड क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, खुद ही क्रिएट करे डॉक्यूमेंटेशन, डिटेलिंग क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स एंड रिजल्ट्स अबाउट हिज एक्स्ट्रा वर्क बेस्ड ऑन मेमोरी. तो पहली चीज, मेमोरी बेस्ड चीजें एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा, डाउटफुल है कितना एक्यूरेट होगा. वेरीफाइबल होगा, बिल्कुल भी वेरीफाइबल नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए तो कोई सोर्स होना चाहिए. वेरीफाई किससे कर रहा है? अपने आप से ही कर रहा है, खुद ही बता रहा है, कुछ भी कहानी बना लो, ठीक है. और करेक्ट सोर्स है क्या? बिल्कुल भी करेक्ट सोर्स नहीं है. सो दिस विल डेफिनेटली नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. हाँ, अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हुआ तब फिर कह सकते हैं मजबूरियां, बट अदरवाइज दिस इज नॉट द आंसर. सेकंड वन, रमन शुड कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स ऑन हिज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम हिज एक्स टीममेट्स एट फ्लाइंग ग्रॉसरीज. तो उसके एक्स टीममेट्स हैं, बिकॉज अब वो मूव ऑन कर गए, बट दीज टीममेट्स आर स्टिल एट फ्लाइंग ग्रॉसरीज. तो सोर्स करेक्ट है, बिल्कुल है. एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट देन फर्स्ट. मोर एक्यूरेट देन फर्स्ट. वेरीफाइबल, बिल्कुल वेरीफाइबल है, बिकॉज राइट सोर्स से हम ले रहे हैं, फ्रॉम हिज टीममेट्स एट फ्लाइंग ग्रॉसरीज, और करेक्ट सोर्स है, ठीक है. सो सारे के सारे ऑप्शन टिक हो रहा है, तो दिस शुड बी द आंसर प्रॉब्ली. अगर इससे बेटर नहीं मिला तो सेकंड को होल्ड पे रखते हैं. थर्ड वन, रमन शुड राइट अ पब्लिक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अपीलिंग टू सूरज. फिर वही कहानी, वही पुरानी, जिससे झगड़ा हुआ है उसी से अपील कर रहे हो, लफड़ा हो जाएगा. मेंशनिंग द चैलेंजेस ही फेस्ड व्हाइल टेकिंग एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज, हाउ ही ओवरकेम देम. अब यहां पे क्या कर रहे हो? कंपनी का जो इंटरनल मैटर है, जो बातें बंद कमरों में हुई, उसको पब्लिक कर रहे हो. पब्लिक कर रहे हो तो पहले तो अप्रोच ही सही नहीं है, नॉट राइट. और अप्रोच सही नहीं तो अंजाम कैसे सही होगा? ऑलरेडी सूरज पहले से ही झगड़ा करके बैठा है और बात नहीं करना चाहता, और फिर तुम और परेशानी बढ़ा रहे हो, ठीक है. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. कभी भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएगा, उल्टा सूरज और चार बातें उल्टी सीधी लिख देगा, या फिर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है. सो फोर्थ वन, रमन शुड कॉल सूरज एंड एक्सप्लेन दैट ही विल नॉट बी एबल टू गेट अ कंसल्टिंग और एन ऑपरेशंस जॉब विदाउट वेरिफिकेशन. अब इससे सूरज खुश होगा या दुखी होगा? क्या फर्क पड़ता है उसको? सूरज बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो नॉट हिज कंसर्न. रमन जाने भाई, बिल्कुल काम नहीं करेगा. फिफ्थ वन, रमन शुड रीच आउट टू रिसेंटली रिक्रूटेड चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर एट फ्लाइंग ग्रॉसरीज टू हाईलाइट द एडिशनल वर्क ही कंट्रीब्यूटेड टू द फैसिलिटेट द ऑफिसर टास्क. अब यहां पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज रिसेंटली रिक्रूटेड. इफ चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर वॉज नॉट रिसेंटली रिक्रूटेड, तो फिफ्थ ऑप्शन में भी हमारे पास करेक्ट सोर्स होता, वेरीफाइबल होता, एक्यूरेट होता, तो हम फिफ्थ और सेकंड के बीच में उलझते, ठीक है. बट सिंस दिस चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर इज रिसेंटली रिक्रूटेड, ठीक है, तो ही माइट नॉट हैव वर्कड विद रमन. तो जब रमन के साथ उसने काम ही नहीं किया होगा तो वेरीफाई कैसे कर पाएगा? तो ही इज नॉट द राइट पर्सन, ठीक है, नॉट द राइट सोर्स. और जब राइट सोर्स नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता बाकी क्या है. Okay, so this is also not the right answer. Right answer will be option 2, that Raman should collect testimonials on his additional responsibility from his ex teammates at Flying Groceries. So second is best option. हाँ, अगर हिरार्की वाइज हम देखते तो सेकंड के बाद में फिर नेक्स्ट कौन सा आता? फिफ्थ आता, but second is best. Okay, so these are all the 3 questions from this set. I believe जो भी हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया तुम्हें समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट रहता है, एडिशनल कोई डिस्कशन है, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि दिस इज योर डाउट, एंड इस क्वेश्चन के पीछे, इस ऑप्शन के पीछे तुम्हें कुछ और चीजें समझ में आ रही है, तो कमेंट में मेंशन करना. इनरिच होगा और हमारा डिस्कशन, ठीक है. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज और क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट with me on Telegram at ADITYAKT. You can also join the Telegram channel Mathological और WhatsApp चैनल Mathological. और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना. नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग सेट फ्रॉम ZAT. That's all in this session. Bye bye, take care and keep learning.